Hello students, in previous video we have revised chapter number 10 and now today we will revise its exercise and question answers. So first of all fill-ups. Dash is the purest form of water. So we have learned that rain when just formed is the purest form of water. So rain is the purest form of water. Water containing impurities is called dash water. So water जिसमें impurities present होती है उसे हम क्या बोलते हैं? That is polluted water. Chemical fertilizers and dash used by farmers can cause water pollution. So जो farmers हैं वो chemical fertilizers use करते हैं और क्या use करते हैं? That is pesticides. So chemical fertilizers and pesticides used by farmers can cause water pollution. Drinking dash water can cause diseases like diarrhea and jaundice. तो डायरिया और जॉन्डिस हमारे कैसे स्प्रेड होती है? बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड वाटर को अगर हम ड्रिंक करते हैं तो उससे हमको ये डिजीज हो सकती है. Dash and agricultural waste increase the growth of microorganisms in water. So we have learned that agricultural and industrial wastes, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है और जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है वाटर में. राइट. सो लर्न द exercises of all the lessons properly. Next is write true or false. So river water is the purest form of water. So we have just revised that rain is the purest form of water. And here it is written that river water is the purest form of water. So this is a false statement. Purest form कौन सी है? Rain. So river water is the purest form of water is false statement. Polluted water may contain dust, germs and smoke. So yes, polluted water में कुछ भी present हो सकता है. Dust भी हो सकता है, germs भी हो सकता है, smoke भी हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है. So that is true. Throwing domestic waste in river water cause water pollution. So yes, water में हम कुछ भी impurity mix करेंगे तो वो उसको pollute कर देगा. So throwing domestic waste भी हमारा impurities है. So throwing domestic waste in rivers causes water pollution. So that is true. Increased growth of microorganisms in water increases the amount of oxygen for aquatic animals. So ये क्या है? ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन इंक्रीज कर देता है. Increases the amount of, read it carefully, increase the amount of oxygen. So वो तो इंक्रीज नहीं करता है, वो डिक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेते हैं. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन. अगेन यू कैन सी यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था फिलअप्स में दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर कैन कॉज वाटर पोल्यूशन. सो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. सो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन को होने से रोकता है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज एमसीक्यूज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. A disease that may be caused by drinking polluted water. Polluted water से कौन सी डिजीज हो सकती है? मलेरिया. मलेरिया हमारा किससे होता है? हमारा मॉस्किटोज की वजह से होता है. कफ, कॉलेरा, डेंगू. सो वी हैव लर्नड अबाउट द डिजीज दैट स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग polluted water are typhoid, diarrhea, cholera and jaundice. So cholera is the disease that is caused by drinking polluted water. Polluted water should not be used for irrigation because we have learned the reason that if we irrigate the field by polluted water, then what will happen? It can harm aquatic animals. So aquatic animals का कोई लेना देना नहीं है. It pollutes river water. तो अगर हम पोल्यूटेड वाटर से फील्ड इरिगेट कर रहे हैं तो वो उससे रिवर वाटर कैसे पोल्यूट होगा?
It reduces the fertility of soil. Yes, so fertility जो है soil की वो क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी, कम हो जाएगी. It increases the production of crops. So production तो increase नहीं हो सकती because it harms the crops and reduces the fertility of soil. So this is the correct option. Next is oil spills in the sea are harmful because जो ऑयल गिरता है वो सी में वो किस तरह से हार्मफुल हो सकता है. सो इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ वाटर इन सी. वाटर का लेवल डिक्रीज करेगा? नो. इनफैक्ट द एक्वेटिक प्लांट्स जो सी में जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो बहुत नीचे होते हैं और जो ऑयल है वो ऊपर कवर बनाता है. जो ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता है वाटर के साथ और वो उसके सरफेस पे कवर बना लेता है. सो दिस इज अगेन नॉट ट्रू. इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर. सो नो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है दैट इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट. एंड लास्ट इज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स. सो यस, दिस इज ट्रू बिकॉज जो ऑयल स्पिल्स होते हैं वो क्या है, आपका एक लेयर और कवर फॉर्म कर देते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर एंड जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट हो जाती है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज पॉल्यूशन ऑफ वाटर. रिवर वाटर कैन बी रिड्यूस्ड इफ. सो रिवर वाटर कैसे हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. सो पॉल्यूशन को हम अब रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं. सो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, व्हाट विल हैपन? वी हैव लर्न दैट दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स गेट मिक्स्ड विद रेन वाटर एंड फ्लोज इनटू द रिवर्स. राइट, जब केमिकल्स हमारे रिवर्स में फ्लो होके चले जाएंगे रेन वाटर के साथ तो उससे क्या होगा, हमारा वाटर रिवर वाटर पॉल्यूट होगा. सो दिस इज रॉन्ग. फार्मर्स यूज स्प्रिंकलर्स फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स. तो स्प्रिंकलर्स अगर फार्मर यूज करता है तो इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ वाटर. उससे रिवर का पॉल्यूशन कम नहीं हो सकता, इससे सिर्फ वेस्टेज जो है वो रिड्यूस होती है वाटर की. वाटर इज अलाउड टू स्टैग्नेट अराउंड द रिवर बैंक्स. वाटर को रिवर के बैंक्स में किनारे पर स्टैग्नेट होने देना चाहिए. सो अगेन दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. उसके स्टैग्नेट होने से तो क्या होगा, मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. लास्ट इज पीपल डू नॉट वॉश क्लोथ्स एंड बाथ देयर कैटल्स इन द रिवर. सो यस, जो अगर हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं रिवर में तो उससे वाटर पोल्यूट होता है और अगर पीपल वॉश नहीं करेंगे तो इट रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ रिवर. और कैटल अगर बात करते हैं रिवर में उससे भी पोल्यूशन होता है, तो अगर वो भी हम नहीं करेंगे तो उससे भी रिड्यूस हो जाएगा हमारा पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर. So we have revised the exercise of this lesson. In next video we will revise the question answers of this lesson. Thank you.